Hello everyone, welcome to my channel The Tooth Fairy, and our today's topic is Staphylococcus. So we are starting with bacteriology now. Staph means a bunch, like a cluster of grapes. Okay? And coccus means round. So basically under gram staining, its structure looks like a bunch of grapes. Now why it is like in bunch of grapes shape, because जो बैक्टीरिया है they divide in all planes. ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकाई है that is our next bacteria, उसमें chain like structure होता है because they divide in one plane, but staphylococcus divides in all planes, so it forms grape like clusters. Now next thing is it's gram positive, it's non motile. जितनी भी मोटिलिटी हम चेक करते हैं बैक्टीरिया की, that is on basis of hanging drop method. हैंगिंग ड्रॉप मेथड और हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन से हमें पता चलता है कि ये नॉन मोटाइल है, एंड देन इट्स नॉन स्पोरिंग. Then there are three species of Staphylococcus. Most important is Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, and Staphylococcus saprophyticus. Forms a separate question of like 5 marks, which is cons, coagulase, negative Staphylococcus. तो CONS करके question आता है एग्जाम में, and they are normally present in human body, these epidermidis and saprophyticus, and they cause opportunistic infection only. So that means कि जब तक person का immune system is not compromised, they cannot cause any infection. But if the person is weak or debilitated or his immune system is compromised, then it can cause infection. So they can cause opportunistic infection. Now, Staph aureus is main pathogenic bacteria which causes infections. इसका दूसरा नाम है Staphylococcus pyogenes. ठीक है, पायोजेनिक मीन्स होता है pus producing. ठीक है, तो नेक्स्ट बैक्टीरिया में द नेम इज Streptococcus pyogenes. So be careful, this is Staphylococcus pyogenes, other name of Staphylococcus aureus. Now इसको कल्चर कैसे करना, ठीक है, it readily grows on any culture media. ठीक है, that's why the question is based on food poisoning, कि someone consumed food from outside, and after 2 to 6 hours they got vomiting, diarrhea, and so the symptoms of food poisoning. So the most common bacteria related to food poisoning is Staphylococcus. Now it can readily grow on any culture media, and they are aerobes. It means they need oxygen, and facultative anaerobes, that means even if the oxygen is absent, still they can survive. Now how it looks on nutrient agar. ठीक है, nutrient agar येलो मीडियम होता है, जेल लाइक मीडियम इज अगार, जहाँ पे हम कल्चर करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को, बिकॉज व्हेन वी आर टेकिंग सैंपल फ्रॉम अ पेशेंट जिसको फूड पॉइजनिंग हो, ठीक है, तो वहां से बैक्टीरिया विल बी इन लेस इन नंबर. जो भी बैक्टीरिया होगा वो कम नंबर में होगा क्योंकि हम सैंपल उतना नहीं कलेक्ट कर रहे. सो उस सैंपल का कलेक्शन इंक्रीज करने के लिए कि सो वी बेसिकली हमें बहुत सारे टेस्ट करने हैं और हमें बहुत सारा सैंपल चाहिए, तो हम उसको कल्चर करते हैं, वी ग्रो इट सेपरेटली. So these are this is gram staining जिसमें वो grape like clusters दिख रहे हैं, and this is their growth on nutrient agar. तो 1 to 2 mm जैसी कॉलोनीज हैं इनकी, ये स्ट्रीक कल्चर करके करा हुआ है. Then nutrient agar पे colonies are 2 to 4 mm diameter, and on McConkey it is like 1 to 2 mm. So colonies are 2 to 4 mm diameter, circular, smooth after 24 hours. And Arabic culture में इसमें they show more golden yellow colonies. Since Staphylococcus एरोबिक में ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है तो वो ज़्यादा येलो गोल्डन कॉलोनीज शो करेंगे इफ द कल्चर इज एरोबिक. देन वी हैव ब्लड अगार, वहाँ पे बीटा टाइप हेमोलिसिस शो होगी. इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट हेमोलिसिस. सो बीटा टाइप हेमोलिसिस इज कंप्लीट हेमोलाइसिस, जहाँ पे भी कॉलोनी बनेगी वहाँ उसके अराउंड कंप्लीट डिस्कलरेशन होगा. इफ यू कैन सी here it is a colony, ठीक है, एंड उसके अराउंड देयर इज डिस्कलरेशन. सो दिस इज कंप्लीट हेमोलाइसिस. हेमोलाइसिस होता है क्या है, जो शीप अगार हम ब्लड अगार यूज कर रहे हैं उसमें शीप ब्लड होता है, तो वहां पे उसको उसके आरबीसीज को, उस ब्लड के आरबीसीज को हीमोलाइज करते हैं ये बैक्टीरिया. ठीक है, शीप ब्लड इज यूज बिकॉज इन ह्यूमन ब्लड देयर आर इनहिबिटर्स. So on blood agar they give beta hemolysis, that means they completely disrupt or destroy the RBCs present around their colony. So it's complete hemolysis.
देन वी हैव मैकोंकी अगार। मैकोंकी अगार में बेसिकली हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट होता है और न्यूट्रल रेड होता है। न्यूट्रल रेड इज इंडिकेटर, ठीक है। अगर और क्रिस्टल वॉयलेट होता है वो हम इसमें यूज नहीं करते, बिकॉज क्रिस्टल वॉयलेट इज यूज्ड फॉर इट एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सिंस ये ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम क्रिस्टल वॉयलेट इस मैकोंकी अगार में से एलिमिनेट कर देते हैं, देन ओनली इट ग्रोज, अदरवाइज इट विल नॉट ग्रो, ठीक है। देन ये लैक्टोज फर्मेंटेशन करता है। मैकोंकी के अंदर क्या हमने डिस्कस किया कि लैक्टोज है, क्रिस्टल वॉयलेट है एंड न्यूट्रल रेड है। क्रिस्टल वॉयलेट हमने एलिमिनेट कर दिया इन ऑर्डर टू ग्रो स्टेफाइलोकोकस। देन देयर इज लैक्टोज को फर्मेंट कर देता है ये, ठीक है। पीएच ड्रॉप करेगा, एसिड फॉर्म हुआ तो पीएच ड्रॉप हुआ तो जो न्यूट्रल रेड है इट विल चेंज इट्स कलर, सिंस इट्स इंडिकेटर मीडियम इट विल चेंज इट्स कलर टू पिंक कलर। नाउ इसके लिए सिलेक्टिव मीडिया है सॉल्ट मिल्क अगार एंड ल्यूडलैम्स मीडिया, ठीक है। देन वी हैव मैनिटोल सॉल्ट अगार। इसमें न्यूट्रिएंट अगार प्लस 1% मैनिटोल है और सॉल्ट से पता चल रहा है NaCl है और इसमें फिनोल रेडस आर इंडिकेटर, ठीक है। तो सेम वे से बैक्टीरिया फर्मेंट करेंगे मैनिटोल को, जैसे मैकोंकी में लैक्टोज को फर्मेंट किया था एंड देयर विल बी एसिडिक पीएच। इसमें फिनोल रेड इट चेंजेस इट्स कलर टू येलो, ठीक है। तो रेड था वो येलो हो जाएगा, दैट मीन्स it is Staphylococcus. मैकोंकी में it gives pink color colonies 1 to 2 mm. Then we have liquid media. Liquid media peptone water है। turbidity का मतलब क्या होता है? Like this is a clear water. Like this is peptone water, but it's clear that we can see through and through. But when it's turbid, we cannot see through and through. So Staphylococcus अगर grow करेगा peptone water में, it will give this turbidity. Then we have ये ब्लड अगार देख लिया, हाँ। सो दिस इज मैकोंकी मीडियम, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेफाइलोकोकस की स्मॉल पिंक कॉलोनीज है 1 to 2 mm डायमीटर की। न्यूट्रिएंट अगार पे इट वाज 2 to 4 mm। और एंटीरोकोकस भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। दिस इसका कितना क्लियर डिफरेंस है कि एंटीरोकोकस ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज दे रहा है। इट इज ऑल्सो लेक्टोज फॉर्मेंट, लेक्टोज ये भी फॉर्मेंट कर रहा है, बट क्लियर वी कैन सी कि स्टैफ और एंटीरोकोकस कैसे डिफर कर रहे हैं। नाउ बायोकेमिकल रिएक्शंस, इसमें हमने याद करना है कि ये कैटलेज पॉजिटिव है। नेक्स्ट बैक्टीरिया जो आएगा वो कैटलेज नेगेटिव है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकाई। दिस मेन डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर इट, दैट स्टेफाइलोकोकस इज कैटलेज पॉजिटिव, ठीक है, एंड इट इज ऑक्सीडेज नेगेटिव। बेसिकली हमें जब याद करना है तो वी आर वेरी सिंपल थिंग कि इंडोल और ऑक्सीडेज नेगेटिव, बाकी सारे मेनली टेस्ट दे आर पॉजिटिव। इंडोल एंड ऑक्सीडेज आर नेगेटिव फॉर स्टेफाइलोकोकस। अब पैथोजेनिक स्ट्रेन और नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन को अगर डिफरेंशिएट करना हो, नॉन पैथोजेनिक कौन से थे? स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस। तो एक तो ये बीटा हिमोलिसिस शो करेगा ब्लड अगार पे, स्टैफ ओरियस, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव कोएगुलेज टेस्ट देगा, ये रहा कोएगुलेज टेस्ट। देन बीटा हिमोलिसिस ब्लड अगार पे शो कर रहा है, कोएगुलेज पॉजिटिव है। मैनिटोल फर्मेंटेशन कर रहा है, टेल्यूराइड रिडक्शन कर रहा है। व्हाट इट डज इज टेल्यूराइड को टेल्यूरियम में कन्वर्ट कर देता है और ब्लैक कॉलोनीज दिखती हैं, सो दैट मीन्स दैट इज पैथोजेनिक स्ट्रेन। फॉस्फेटेज टेस्ट, तो इसके पास स्टैफ ओरियस के पास एक एंजाइम होता है फॉस्फेटेज। हमने क्या करना है, न्यूट्रिएंट अगार में वी ऐड फिनोल्फथलीन डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब इसमें डाइफॉस्फेट है तो जो बैक्टीरिया के पास फॉस्फेटेज है वो इस पे काम करेगा एंड इसको फ्री कर देगा। फिनोल्फथलीन जब फ्री हो जाएगी, ठीक है, रिलीज होगी, ठीक है। अब अमोनिया है हमने ऐड करा तो पिंक कलर ऑफ कॉलोनीज फॉर्म हुई, so that means it is staph aureus. So basically ये you have to remember 2-3 tests: beta hemolysis, telluride reduction, phosphatase test। ये क्वेश्चन कॉन्स जो हम कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये भी, क्योंकि ये जो स्टैफ ओरियस था वो पॉजिटिव कोएगुलेज था और जो एपिडर्मिडिस और सेप्रोफिटिकस हैं दे आर नेगेटिव कोएगुलेज। अब ये कैटलेज टेस्ट है, जो कैटलेज पॉजिटिव मैंने बताया स्टैफ के लिए और कैटलेज नेगेटिव है स्ट्रेप्टोकोकाई। सो कैटलेज पॉजिटिव है, यू कैन सी सम बबल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। कैटलेज नेगेटिव में कोई बबल नहीं है। देन वी हैव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स कि इसको कितना हाई टेम्परेचर पे लेके जाएं इन ऑर्डर टू किल इट। सो वी नीड अ हाई टेम्परेचर ऑफ 62 डिग्री सेल्सियस to 80 डिग्री सेल्सियस एंड वी नीड
to give it exposure of like 30 minutes to 1 hour. So that is lot of time. That means काफी powerful bacteria है. जो streptococci होता है वो कम, उसको कम temperature चाहिए होता है for कम timings, ठीक है. सो इट इज किल्ड बाय क्रिस्टल वॉयलेट या ब्रिलियंट ग्रीन, ठीक है. तो क्रिस्टल वॉयलेट हमने कहाँ पढ़ा, मेकोंकी में. मेकोंकी का पार्ट होता है क्रिस्टल वॉयलेट, बट इन ऑर्डर टू ग्रो स्टेफाइलोकोकस वी रिमूव क्रिस्टल वॉयलेट एंड स्ट्रेप्टोकोकाई सर्वाइव्स नाइसली इन क्रिस्टल वॉयलेट. सो ये भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है स्टैफ और स्ट्रेप्टो का. सो ऑल्सो इसी से फूड पॉइजनिंग भी एक्सप्लेन होती है, सिंस इट नीड्स अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड फॉर ज़्यादा टाइमिंग्स, तो इसीलिए वो किल नहीं हो पाते. एंड ऑल्सो जो एंड फूड पॉइजनिंग करते हैं. एंड ऑल्सो जैसे जो खाना बना रहा है पर्सन, ठीक है, उसके अगर कोई भी लीजन है, स्टेफाइलोकोकस लीजन, तो उसके अंदर ऑलरेडी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए होते हैं. वी विल रीड अबाउट टॉक्सिन्स, ठीक है. तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे अगर फूड में, तो यू कैन इजिली गेट दिस इन्फेक्शन. नाउ एक्सप्लेनिंग इट्स एंटीजेनिक स्ट्रक्चर. एंटीजेनिक स्ट्रक्चर मतलब बैक्टीरिया का कैसा स्ट्रक्चर होता है. कैप्सूल है उसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, वो फेगोसाइटोसिस रेजिस्ट करता है. लाइक अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन या एंटीजन कोई भी मटेरियल आएगा तो आवर बॉडी रिएक्ट्स एंड इट सेंड सम एंटीबॉडीज टू वर्क. लेकिन एंटीबॉडीज का जो प्रोसेस होता है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोस कर लेती है, इनको किल कर सकती है. तो वो नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज देर इज अ कैप्सूल एंड इट रेजिस्ट फेगोसाइटोसिस, ठीक है. और कुछ जो कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स होते हैं, दे आर कंपैरेटिवली मोर विरुलेंट. दैट मीन्स दे कैन कॉज मोर इन्फेक्शंस. पेप्टिडोग्लाइकैन है जो बैक्टीरियल सेल वॉल में, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ. देन देर इज टिकोइक एसिड विच हेल्प्स बैक्टीरिया टू अडियर टू सरफेस ऑफ होस्ट. रीजन चाहिए होती है. एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम ऑप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस. ये सब प्रोसेसेस हैं बाय विच एंटीबॉडीज हेल्प्स आवर बॉडी to kill bacteria. Protein A is also there, which is antiphagocytic and it cause injury to platelets. Then there are toxins and enzymes, ठीक है. एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्या था कि जो बैक्टीरिया को बचा रहा है किल होने से, ठीक है. एंड टॉक्सिन एंड एंजाइम्स क्या हैं, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजीज इन होस्ट. सो इसके देर आर 5 टॉक्सिन्स. First is hemolysin. Hemolysin में there is alpha, beta, gamma types. They are called as exotoxin. ठीक है. Alpha lysin है, it kills WBCs. It's dermonecrotic, मतलब skin की necrosis कर सकता है. It also injures muscles or circulatory system. ठीक है. Beta lysin है, it acts on sphingomyelin. It is present in sphingomyelin is present in plasma membrane of erythrocytes. ठीक है. देन गामा लाइसिन है, दे एक्ट, गामा लाइसिन और डेल्टा लाइसिन है जो सब पे ही एक्ट करते हैं. ये वाले टॉक्सिन विल एक्ट ऑन ह्यूमन, शीप, रैबिट, एरिथ्रोसाइट्स. जो अल्फा है वो सिर्फ रैबिट पे कर रहा था, जो बीटा है वो शीप पे कर रहा था, ठीक है. देन देर इज ल्यूकोसिडिन. ल्यूकोसिडिन में देर इज अ स्लो, नाम से पता चल रहा है कि ल्यूकोसाइट्स के उसको डैमेज करेगा, ठीक है. तो ल्यूकोसिडिन में देर इज स्लो कॉम्पोनेंट एंड फास्ट कॉम्पोनेंट एंड इट किल्स PMNL, polymorphonuclear leukocytes and macrophages. Then we have enterotoxin. So this जो first था hemolysin, that was called as exotoxin. Enterotoxin is responsible for food poisoning, which is within 2 to 6 hours of consuming contaminated food. इसमें nausea, vomiting, diarrhea होगा, ठीक है. 9 टाइप्स का एंटीरोटॉक्सिन होता है, ठीक है. बेसिकली A to I तक है और C का C1, C2, C3 है. ABC, C1, C2, C3, D, E, H, I, ठीक है. F and G मिसिंग है एंटीरोटॉक्सिन में. सो F and G मिसिंग है एंटीरोटॉक्सिन में. देन इट इज रेजिस्टेंट टू गट एंजाइम्स. दैट्स व्हाई कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते एंड फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना. इट्स ऑल्सो कॉल्ड सुपर एंटीजन. एंटीजन क्या करता है, नॉर्मली हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज ऑल द सेल्स जो दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट होस्ट. बट ये क्या करता है, ये काफी ज्यादा स्टिमुलेट कर देता है टी लिम्फोसाइट्स को. एंड देन टी लिम्फोसाइट्स रिलीज इंटरल्यूकिन्स एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर
जो हम होस्ट को भी बॉदर करते हैं, ठीक है। व्हेन द बॉडी इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज, इट आल्सो रिलीजेस सम थिंग्स व्हिच आर डेंजरस टू बैक्टीरिया, बट इन मोर क्वांटिटी इट्स आल्सो बैड फॉर आवर बॉडी। तो दे आर कॉल्ड सुपर एंटीजन सिंस दे आर स्टिमुलेटिंग T lymphocytes, and it's detected by ELISA. Enterotoxin is detected by ELISA test. The next is toxic shock syndrome, TSST। इसका भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, इट कॉजेज fever, hypotension, vomiting, diarrhea, erythematous rash with desquamation। desquamation क्या होती है? स्क्वेमस सेल्स होते हैं, जैसे हमारा कोई भी ब्लिस्टर वगैरह होगा, अगर अल्सर होगा या कुछ भी, तो जो सुपरफिशियल सेल्स है दे गेट डिस्ट्रॉयड। तो desquamation हो रही है। हाइपरीमिया मीन्स redness of mucous membrane. They colonize vagina more frequently, so it can cause toxic shock syndrome. It's also called superantigen since it's stimulating T lymphocyte to release interleukins and tumor necrosis factor, same as enterotoxin. So things to remember is that enterotoxin is causing food poisoning, and toxic shock syndrome is causing some erythematous rash. Okay. And then there is exfoliative toxin. Exfoliative toxin is toxin A and toxin B. Exfoliation से हमें पता चल रहा है कि कोई स्किन की exfoliation क्या होता है, जैसे हम स्क्रबिंग करते हैं तो we exfoliate the dead cells. Same way जो एपिडर्मिस है, हमारी अपर मोस्ट लेयर है, उसको स्प्लिट कर देगी एंड इट कैन कॉज ब्लिस्टरिंग डिजीज। जैसे छाले पड़ जाते हैं तो ऊपर वाली स्किन अलग से दिखती है एंड देन इट हैज सम फ्लूइड। तो सेम वे ऊपर से एपिडर्मल स्प्लिटिंग करी एंड इट कॉज ब्लिस्टरिंग डिजीज। So there are two types of toxin, toxin A, toxin B. Toxin is heat stable, ठीक है। That means अगर इसको हीट कर भी रहे हैं इस बैक्टीरिया को, still exfoliative toxin can survive and it can cause these blistering diseases. अब ये टर्म याद रखनी है, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, रिटर्स डिजीज होता है इन न्यूबॉर्न, अदरवाइज हम इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, 4 times S। ये भी, इसमें भी क्या है, स्किन की डिस्कॉमेशन हो रही है। सो एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन इज रिलेटेड टू रिटर्स डिजीज और एक्सफोलिएशन और ब्लिस्टरिंग डिजीज। Then it produces some enzymes, the bacteria. So it produces coagulase, phosphatase and deoxyribonuclease. ठीक है। Coagulase क्या है? Heat labile है। That means it gets killed by heat. ठीक है। It gets inactivated by heat. What it does, it converts fibrinogen into fibrin. नाउ इसको चाहिए होता है कोएगुलेज रिएक्टिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये प्लाज्मा से लेता है, ठीक है, देन इट कन्वर्ट्स फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन, ठीक है। अब जो कोएगुलेज हमारा टेस्ट है वो हम वी डू इट बाय स्लाइड एंड ट्यूब मेथड, ठीक है। स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट बाउंड दिखाता है बाउंड कोएगुलेज कितना, एंड ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट करता है कि फ्री कोएगुलेज कितना है इन द बैक्टीरिया। एंड देन स्टैफ ओरियस है जो, इट शोज पॉजिटिव टेस्ट। हमने जो भी ब्लड सैंपल आया पेशेंट का, उसका प्लाज्मा है और उसमें जो स्टैफ ओरियस है अगर, तो इट विल शो पॉजिटिव कोएगुलेज टेस्ट। देन देयर इज पैथोजेनेसिस, कि डिजीज कैसे क्या कॉज करता है। फर्स्टली वी ऑलरेडी रेड की इट कॉजेज पायोजेनिक इन्फेक्शन, दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस पस, थिक क्रीमी पस। इसमें कंसिस्टेंसी याद रखनी है पस की, थिक क्रीमी पस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस में इट इज मोर लिक्विडी, तो इसमें याद रखना है। एंड देन द लीजन्स आर लोकलाइज्ड। स्ट्रेप्टोकोकस के केस में जनरलाइज्ड लीजन होती थी कि डिजीज कुछ पार्ट में है कुछ पार्ट में नहीं है, दैट मीन्स लोकलाइज्ड। देन देयर इज क्यूटेनियस इन्फेक्शंस, जैसे हमने पढ़ा ही है कि स्किन के कुछ इन्फेक्शंस हैं, कोई डिस्क्वामेटिव डिजीजेस हैं जैसे कि पेम्फिगस, इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज ऑल्सो। एंड देन वूंड एंड बर्न इन्फेक्शन जहाँ पे है वहाँ पे इजीली ये इसको निश मिल सकता है टू ग्रो एंड इट कैन कॉज फर्दर इन्फेक्शंस। then it causes deep infections like tonsillitis, pharyngitis, sinusitis, and septicemia, urinary tract infection, and food poisoning भी कर सकता है। so ये पढ़ लिया हमने, मेन यही क्वेश्चन है, 2 to 6 hours of contaminated food, then it cause nosocomial poisoning। nosocomial मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड या कम्युनिटी एक्वायर्ड, ठीक है।
तो हॉस्पिटल्स में ये कॉमनली है स्टेफेलोकोकस। तो वहां से भी कोई भी अगर पॉइजनिंग होगी तो दैट इज कॉल्ड एज नोजोकोमियल पॉइजनिंग, दैट मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। Then we already read that there are skin exfoliative diseases like Ritter disease, we call it in newborn, and 4 times S, Staphylococcus scalded skin syndrome. Then toxic shock syndrome, use of tampons in women, ये पढ़ लिया। तो ये चीजें कर सकता है ये, ठीक है। एंड देन there are other complication also। आप अगर स्टेफेलोकोकस एप्सिस ऑलरेडी है, ऑस्टियोमाइलिटिस है, या कोई भी वुंड इन्फेक्शन है, तब इसका और इंक्रीज हो सकता है चांस ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। देन देयर इज टाइपिंग मेथड। टाइपिंग क्या होता है कि अगर लार्ज स्केल पे कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, सो वी डू इट इन ऑर्डर टू ट्रेस द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। सपोज करो कोई फूड आउटलेट है जहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है, तो एंड होल सिटी सफरिंग फ्रॉम इट, सो वी नीड टू डू दिस टाइपिंग मेथड इन ऑर्डर टू लोकेट दैट आउटलेट, दैट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। So bacteriophage typing, DNA fingerprinting, PCR, plasmid tapping, just remember the names of it. Now, सो नेक्स्ट इज पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया में पेनिसिलिनेज है, दैट इज बीटा लैक्टमेज है, तो वो पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो पेनिसिलिन असर ही नहीं कर पाएगी। तो जो बैक्टीरिया दे आर रेजिस्टेंट ऑफ पेनिसिलिन, दे आर कॉल्ड एज मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ओरियस, ठीक है। इसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन होते हैं। ऐसे केसेस में हम वेनकोमाइसिन यूज करते हैं। एंड इट्स कॉल्ड एज कम्युनिटी एक्वायर्ड MRSA, क्योंकि जहाँ भी पेशेंट को कोई भी ऑपरेशन के बाद कोई भी वुंड इन्फेक्शन हैं, तो उस केसेस में ज़्यादा है ऐसे बैक्टीरिया का फॉर्म होना, ठीक है। So it is called as community acquired MRSA. Now we are going to final thing कि लैब डायग्नोसिस कैसे करना है। क्वेश्चन लिखना कैसे होता है इज डिपेंडिंग ऑन हाउ क्वेश्चन इज आस्क्ड। अगर फूड पॉइजनिंग का पूछा है उन्होंने, तो सिर्फ हम फूड पॉइजनिंग का लिखेंगे, जैसे वॉमिट या फीसेस सैंपल लेंगे फूड पॉइजनिंग का, ठीक है। अगर पस है तो अगर सुपरेटिव लीजन है तो पस का लेंगे स्पेसिमेन। सो यू ओनली राइट दीज थिंग्स इन एग्जाम्स की जो पूछी गई हैं, बाकी चीजें स्पुटम या यूरिन ये सब नहीं लिखने की जरूरत। देन स्पेसिमेन कलेक्शन इज a pus for suppurative lesion, that is pyogenic lesions, then sputum for respiratory infection, blood is for septicemia, कोई भी blood infection है, then urine is for urinary tract infections, and vomit या feces or sample of food for food poisoning. Now we are going to collect it. इसको स्टेराइल स्वॉब से हमने कलेक्ट करना है, स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट करना है, सो दैट कोई बैक्टीरिया की कंटामिनेशन ना हो। इफ द सैंपल इज यूरिन, देन वी आर गोइंग टू यूज मिड स्ट्रीम यूरिन, एंड ब्लड कल्चर बॉटल्स हमने यूज करनी है ब्लड के लिए, एंड इमिडिएटली ट्रांसपोर्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल। नाउ अब हम इसको डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं सैंपल को। तो अगर ग्राम स्टेनिंग करी तो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, तो ये ग्राम पॉजिटिव है जैसे, ठीक है। नाउ हम इसको कल्चर करते हैं। कल्चर इज डन टू ग्रो बैक्टीरिया मोर इन नंबर सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली। सिंस हम पेशेंट से इतना सैंपल नहीं ले सकते, तो हम इसको लैब्स में ग्रो करेंगे जो भी पेशेंट से सैंपल ऑब्टेन हुआ होगा। सो वी रेड अबाउट ऑल द कल्चर मेथड्स, जितना भी ब्लड अगार, पेप्टोन वाटर, मैकॉन्की अगार, और हमने सॉल्ट मिल्क अगार, सिलेक्टिव मीडियाज पढ़े, तो ये सब यहाँ कल्चर मेथड में लिखना है, ठीक है। अब कल्चर किया, उसके 24 आवर्स के बाद हमने उसकी मॉर्फोलॉजी एग्जामिन करनी है। अगेन ड्रॉप प्रिपरेशन हम मोटिलिटी के लिए चेक करनी है, ठीक है। देन अब उसकी कॉलोनी बन गई है। कॉलोनी क्या होगी? जो हमें एविडेंट दिख रही है, हमें उसके लिए कॉलोनी के लिए हमें माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए होता है, वी कैन सी इट बाय नेकेड आइज, ठीक है, प्लेट के अंदर, ठीक है, कल्चर प्लेट के अंदर। तो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में 2 to 4 mm डायमीटर की सर्कुलर रेज ओपेक गोल्डन येलो पिगमेंट वाली हमें दिखेंगी कॉलोनीज। बीटा हिमोलिसिस भी हमने पढ़ लिया है, तो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी भी पुराने वाला ही लिखना सारा। And then we already read all the biochemical reaction. Most important is catalase positive है, ये bubbles produce कर रहा था catalase test में, and streptococcus is catalase negative. अब कोएगुलेज टेस्ट हमारा पॉजिटिव था सिर्फ ओरियस में, और बाकी जो कॉन्स था कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, दैट इज स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस एंड स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस, उसमें ये नेगेटिव था। तो ये टेस्ट जरूर याद करने हैं।
ऑल्सो हमने डिस्कस किया था कि कौन से टेस्ट हमारे सिर्फ नेगेटिव होते हैं, इंडोल एंड ऑक्सीडेज, ठीक है, बाकी सारे कैटलेज, मिथाइल रेड, वीपी टेस्ट ये सारे पॉजिटिव है। तो आपने याद रखना है कि इंडोल और ऑक्सीडेज इसमें नेगेटिव है स्टाफ में। देन बायोकेमिकल टेस्ट हो गए। देन बैक्टीरियोफेज टाइपिंग, अगर सेम वही पुराने वाली लिखनी है। एंड देन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कि कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी इस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया पे, वी डू इट बाय स्टोक्स मेथड। एंड देन वी फाइनली डिस्पेंस द एंटीबायोटिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। नाउ ट्रीटमेंट में मेनली जो हमारी मोस्ट इफेक्टिव होती है बेंजाइन पेनिसिलिन होती है, बट इफ इट इज मेथिलिन रेजिस्टेंट तो वेंकोमाइसिन हम यूज करते हैं। अगर सुपरफिशियल माइल्ड लीजन है, दोज नर्सेज एंड डॉक्टर्स हु आर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स and are in continuous touch with some patient who have some post operative wounds or something जहाँ पे contaminate हो सकता है Staphylococcus aureus, so they can use बेसिट्रिसिन और क्लोरेक्सिडीन for their superficial mild lesions, ठीक है, बेसिट्रिसिन क्रीम या क्लोरेक्सिडीन। नाउ द फाइनल टॉपिक इज 5 मार्क्स का आता है, कॉन्स के नाम से, कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोका है। सब पढ़ लिया हमने जो भी था इसमें, just giving it a final touch, ठीक है। So it is normal flora of skin, opportunistic infection है, if the person is weak then only person can suffer from infections by these staphylococcus, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है पहला, ठीक है, ये कहाँ पे है, अगर किसी के प्रोस्थेटिक वीक कैसे हो सकता है, या तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या कोई और ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम चल रही है बॉडी में, तो प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स लगे हुए हैं, ठीक है, या कैथीटर्स हैं, तो then it can cause septicemia, bacterial endocarditis and stitch abscess. Staphylococcus saprophyticus का क्या है, यूटीआईज करेगा, ठीक है, सेप्टिसीमिया एंड एंडोकार्डाइटिस। ना जो टेस्ट है डिफरेंशिएटिंग, मैंने बताए थे पहले भी कि हाउ टू डिफरेंशिएट पैथोजेनिक फ्रॉम नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। सो कोएगुलेज पॉजिटिव है, मैनिटोल फर्मेंटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ डीएनए, फॉस्फेटेज, अल्फा लाइसिन, सब ओरियस के लिए पॉजिटिव है, कॉन्स के लिए नेगेटिव है। और इसके लिए कौन से याद रखना है, इंडोल एंड ऑक्सीडेज वर नेगेटिव। फाइलोकोकस ओरियस में सब पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ इंडोल और ऑक्सीडेज नेगेटिव था, कॉन्स में ही सारे नेगेटिव हैं, तो ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ओके, थैंक यू एवरीवन, इट वाज अ लॉन्ग लेक्चर बट थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई होप इट हेल्प्ड, एंड प्लीज like, share and subscribe. Thank you.